વંદે ગુજરાત. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સુસ્વાગતમ. અભિવાદન સ્વીકાર કરશો. વિદ્યામ દદાતિ વિનયમ વિનયાત પ્રાપ્નોતિ ધનમ ધનાત ધર્મ તતઃ સુખમ. દર્શક મિત્રો, વિદ્યા એવી વસ્તુ છે કે જેના દ્વારા વિનય દ્વારા ધન દ્વારા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આ સુખ એટલે આરોગ્યરૂપી સુખ. આ ઉપક્રમ આયુષ પ્રભાગ દ્વારા આયોજિત આ એક જ્ઞાન સંગોષ્ઠી, એ ઉપક્રમ આ જ એક એક્સરસાઇઝનો ભાગ છે કે સ્વાસ્થ્યરૂપી સુખને મેળવવા માટે, જે સ્વાસ્થ્ય મેળવવા માટેની સ્વસ્થ જીવનશૈલી છે, આહાર વિહાર છે, એમને આપના સુધી પહોંચાડવા માટેનો એક યજ્ઞ. એટલે જ આયુષ પ્રભાગ દ્વારા આયોજિત સ્વાસ્થ્ય વ્યાખ્યાન શૃંખલા. અને આ શૃંખલાના 130મા એપિસોડમાં હું વૈદ્ય નિર્મલ આલોદરિયા આપ સર્વેનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આપ સર્વે જાણો છો કે આયુષ AYUSH આ જે બધા વર્ડ્સ જે છે, કોઈને કોઈ એક ભારતીય પ્રાચીન ચિકિત્સા પ્રણાલી જે છે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. અને માટે જ એ ચિકિત્સા પ્રણાલીઓને વ્યવહારમાં વધારે લોકભોગ્ય બનાવવા માટે લોકો આ પ્રણાલીઓના સિદ્ધાંતોને સમજી, અપનાવી, ફોલો કરી અને સ્વાસ્થ્યની જાળવણી પણ કરી શકે અને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ પણ કરી શકે. આ એક ઉદ્દેશ્ય સાથે આ સ્વાસ્થ્ય વ્યાખ્યાન શૃંખલાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અને આ આયુષ, આયુર્વેદ, યોગ, યુનાની, સિદ્ધ અને હોમિયોપેથી એક વર્ડ્સ લઈ અને આયુષ્ય શબ્દ બનેલો છે. ખાસ એટલા માટે કહેવાનું દર્શક મિત્રો કે આ બધી જ પ્રણાલીઓની સાથે સાથે નેચરોપથી, જેને આપણે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ પણ આયુષ વિભાગનો જ એક ભાગ છે. સાથે સાથે તિબેટિયન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન, જેને આપણે સોવા રિગ્પા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, હમણાંથી આયુષ વિભાગની અંદર એનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આજે ખાસ કરી અને પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, આમ તો દર્શક મિત્રો આયુર્વેદ પણ પ્રકૃતિની સાથે રહીને પ્રકૃતિના જ દ્રવ્યો દ્વારા સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ અને સ્વાસ્થ્યનું વર્તનની વાત કરે છે. પરંતુ એમનો જ એક સિદ્ધાંત એટલે કે પંચમહાભૂત, 5 મહાભૂતોનો ઉપયોગ કરી અને શરીરને કઈ રીતે સાજું રાખી શકાય, આના પર આધારિત એક પ્રાકૃતિક જીવનશૈલી, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ્ધતિની ચર્ચા આજે આપણે કરવાના છીએ. ચોક્કસથી એના વિશેનો સંવાદ કરીશું. એક સામાન્ય પ્રાર્થના લઈએ અને પછી કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. દર્શક મિત્રો, આપ સૌ જાણીએ છીએ કે ગાંધીજી, આપણા મહાત્મા ગાંધી, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાના ખૂબ જ હિમાયતી હતા. અને ઘણા બધા સ્વાસ્થ્ય સંબંધી પ્રશ્નો માટે એમને હંમેશા આ પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવા માટેની એક ભાવના રાખી છે, એક એડવોકસી કરેલી છે. 18મી નવેમ્બર, 2 દિવસ પછી ભારત જે છે, સમગ્ર દેશની અંદર 3જો નેશનલ નેચરોપેથી ડે, સાર્વદેશીય પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા દિવસની આપણે ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એ ઉજવણીના ભાગરૂપે જ આજે આપણે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા શું છે, સામાન્ય સંજોગોની અંદર કેવા રોગોની અંદર એનો ઉપયોગ કરી શકાય, નેચરોપેથી પ્રમાણે સ્વાસ્થ્ય રક્ષા માટેના 5 સૂત્રો કયા છે, આ વિશે એક ચર્ચા કરવાના છીએ. અને આ વિષયોની ચર્ચા કરવા માટે દર્શક મિત્રો આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર રિપુદમન સિંહ સર. સાહેબ, આપનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર રિપુદમન સાહેબ જે છે એ હાલમાં ચીફ નેચરોપેથી કન્સલ્ટન્ટ તરીકે ઇપ્કોવાલા નેચરોપેથી સેન્ટર, સોખડા,
બરોડાની અંદર પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. સાહેબે અભ્યાસની અંદર બેચલર ઇન નેચરોપેથી અને યોગ સાયન્સ એ કરેલું છે અને એસ વ્યાસા યુનિવર્સિટી ત્યાંથી એમનું પીએચડી હાલમાં કન્ટિન્યુ થઈ રહ્યું છે. સાથે સાથે મોરારજી દેસાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ યોગ એન્ડ નેચરોપેથી 5 વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમય સુધી સાહેબ એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રિન્સિપાલ રહી ચૂક્યા છે અને પ્રાકૃતિક चिकित्साની અંદર ખૂબ બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. तो अगेन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर पहला क्वेश्चन तो हम यही डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी सी द्विधा है, थोड़ी शंका है कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद या तो अन्य जो कोई चिकित्सा प्रणालियाँ है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, वो हम दर्शकों को बताएं. बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को आने वाले प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की एक ऐसी शाखा है जो कि हमारी सेल्फ हीलिंग और पंच महाभूत के सिद्धांत पर आधारित है. प्राकृतिक चिकित्सा का पहला सिद्धांत ये कहता है कि शरीर अपने आप स्वस्थ होता है जब हम उसे उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त एटमॉस्फेयर देते हैं जिसमें कि वो ठीक हो सके, तो अपने आप शरीर ठीक होना शुरू कर देता है. तो उसके लिए बाहर से कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती. प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा मानती है. इसलिए भारत में या भारत के बाहर भी जितनी भी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें कि दवा नहीं दी जा रही है, उनको इस नेचुरोपैथी अम्ब्रेला टर्म के अंदर रखा गया है, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ रखा गया है. तो अगर मैं कुछ पद्धतियों के यहाँ नाम लूँ, जैसे कि एक्यूप्रेशर है, और एक्सरसाइज थेरेपी है, डाइट थेरेपी है, भोजन की चिकित्सा है, मिट्टी की चिकित्सा है, मिट्टी का अलग अलग प्रकार से उपयोग करना, पानी की चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, और भारत की जो स्पेशलिटी, भारत की जो देन है प्राकृतिक चिकित्सा को, वो है योग, प्रार्थना. तो इसके माध्यम से भी हम रोगियों को ठीक करते हैं. भगवत गीता में भी बताया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखा. तो योगी लोग अपने आप को ठीक कैसे करते हैं? युक्त आहार विहार से, सही आहार से, सही विहार से, सही निद्रा से और सही जीवनचर्या से. तो अगर हम सही जीवनचर्या का पालन कर लें तो हम वैसे ही स्वस्थ हो सकते हैं बिना किसी औषधि के. ये एक कॉन्सेप्ट के साथ ही चिकित्सा पद्धति चलती है. इसी विशेषता के कारण ड्रगलेस थेरेपी भी कहा जाता है. તો દર્શક મિત્રો, આપણે જાણ્યું કે આ એવી ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે કે જેમાં આમ જોઈએ તો કોઈ પણ પ્રકારની ઔષધિઓ અથવા તો મેડિસિન્સનો યુઝ નથી કરવામાં આવતો, માટે એને ડ્રગલેસ થેરાપી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. થોડા સમયથી વાત કરીએ દર્શક મિત્રો, તો સરકારશ્રી પણ ક્વોલિટી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રી પર ખૂબ સારું ધ્યાન આપી રહી છે. ઘણા બધા નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને ઘણા બધા નવા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ એવા માર્કેટમાં આવી રહ્યા છે કે ખાસ કરી અને સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, હેલ્થ અને વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રીને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા ઉપક્રમો થઈ રહ્યા છે. પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા મને લાગે છે કે વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઘણું ખરું યોગદાન આપી શકે એમ છે. સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી કે દિનચર્યા, યુક્ત આહાર, યુક્ત વિહાર, પ્રોપર નિંદ્રા લઈએ, આપણા જે દિનચર્યાના ભાગો છે એને જ જો રીચેનલાઇઝ કરીએ તો શરીર જાતે પોતે જ સ્વભાવથી જ પુનઃ સ્વસ્થતા તરફ આગળ વધશે. અને માત્ર એ એક અવકાશ આપવાની જરૂરિયાત છે, આપણે એક શરીરને એ સ્કોપ આપવાની જરૂરિયાત છે જેની વિશદ છણાવટ આયુર્વેદમાં સ્વભાવ ઉપરમવાદ, શરીરનું સ્વસ્થ રહેવું એ સ્વભાવ છે અને રોગ એ વિકૃતિ છે, સ્વાસ્થ્ય એ પ્રકૃતિ છે. અને જો પ્રકૃતિને અવકાશ આપીએ તો સ્વતઃ એ રોગોનું નિર્મૂલન કરશે અને સ્વાસ્થ્યની પ્રાપ્તિ કરશે. આ જ સિદ્ધાંત પર આધારિત आयुर्वेदનું सिस्टर साइंस कही शकाय एवी आ प्राकृतिक चिकित्सा. सर, सामान्य तौर पे जब जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो बहुत सी बार, और जैसा कि आज का विषय भी है कि स्वास्थ्य रक्षा के संदर्भ में पंचतंत्र, तो ये पंचतंत्र क्या है और उसको एक सामान्य व्यक्ति अपनी जीवन शैली में कैसे एडप्ट कर सकता है? तंत्र का मतलब होता है टेक्निक. तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक चिकित्सक हुए डॉक्टर वी वेंकट राव, हैदराबाद में उनकी प्रैक्टिस, वहाँ उनका अध्ययन हुआ, वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे. उन्होंने ऐसे 5 नियम बताए कि जिनका हम पालन करें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं. तो उसमें पहला नियम है कि दिन में 2 बार भोजन करना.
दूसरा नियम है कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना। तीसरा नियम है दिन में 1 घंटे, मिनिमम 1 घंटे आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। चौथा नियम है कि आपको सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना है। और पांचवा नियम है कि प्रतिदिन आपको प्रार्थना करनी है। कुछ लोग 1 बार करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं। अब हम इन नियमों को अगर एक एक करके समझें तो जो पहला नियम है कि दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना है। 2 बार भोजन करने का मतलब आपका दिन 24 घंटे का होता है, 7-8 घंटे निद्रा में जाते हैं, बाकी के जो एक्टिव समय होता है करीब 16 घंटे का होता है। तो 2 भोजन के बीच में करीब 8 घंटे का अवकाश होता है। तो यहाँ मील्स के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस बनाने की बात कही गई है। आपके जो 2 भोजन हैं उनके बीच में आप एक अंतर रखिए ताकि जो आपने पहला भोजन किया है वो अच्छे से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप दूसरा भोजन कीजिए। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस लोगों के अंदर होती हैं। वो ऐसा मानते हैं कि 2-2 घंटे के अंदर में भोजन करना है, 3-3 घंटे के अंदर में भोजन करना है। छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है 2-2 घंटे में, उनके उम्र के हिसाब से या उनका जो पीडियाट्रिशियन जिस तरीके से उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको सिर्फ दिन में 2 बार भोजन करने की आवश्यकता है, वो भी करीब करीब 7 से 8 घंटे का दोनों भोजन के बीच में एक अंतराल होना चाहिए। अभी आप लोग देखते होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कॉमन हो गई, बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी लाभ उससे मिल रहा है। तो जब हम 2 वक्त भोजन की बात करते हैं तो अपने आप ही आपकी इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है उसका साइकिल पूरा हो जाता है। इसमें बोलते हैं कि आप 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करें। तो अगर आपने सुबह में 10-11 बजे भोजन किया और शाम को रात्रि से पहले भोजन किया तो अपने आप आपका जो गैप है वो मेंटेन हो जाता है और 16 घंटे की फास्टिंग भी पूरी हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे लाभ आपको स्वास्थ्य में मिलते हैं। जब हम भोजन की बात करें तो भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब सही मात्रा में होने चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड मात्रा में होने चाहिए। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है जिसे हम ध्यान नहीं देते या भूल जाते हैं वो है फाइबर। तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला भोजन करें। प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला भोजन करें। फाइबर हमारे इंटेस्टाइन को अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ये एक ऐसा फाइबर के अगर हमारे भोजन में सही मात्रा में है तो बॉडी में वाटर की अमाउंट मेंटेन रखेगा, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन क्रिएट नहीं होगा तो मल पदार्थ आपके आंतों में रुकेगा नहीं तो वो एंडोटॉक्सिन्स नहीं बनाएगा। इसलिए भोजन के साथ में बाकी पदार्थों के साथ में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी रहे। इसलिए हमें देखना है कि हमारे खाने में फाइबर अच्छी मात्रा में है कि नहीं। तो ये अच्छा फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड लेने से, कच्चा आहार लेने से। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम कच्चे आहार को बहुत महत्वता देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि कच्चे आहार में प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा दिए गए न्यूट्रिएंट्स अपने प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। जैसे ही हम उनको कुक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वैसे ही 50% से भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम हो जाती है। जैसे ही आप किसी वेजिटेबल वगैरह कुक करते हैं तो आप देखेंगे कुक करने से ही अगर आपने आधा घंटे उसकी बॉयलिंग की है तो विटामिन सी करीब 50 to 60% कम हो जाती है। ऐसे जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं उनमें क्वालिटेटिव चेंजेस आने लगते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कुक करने से बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन है जब हम कुक करते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाती है। तो मेजरली कुक करने से जो हमारा खाना है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए स्वस्थ शरीर रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके भोजन में कम से कम 500 से 600 ग्राम कच्चा भोजन, दिन भर के भोजन में 500 से 600 ग्राम कच्चा भोजन होना चाहिए। अब इस कच्चे भोजन में क्या क्या हो सकता है? आपका सलाद हो सकता है, फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, नारियल पानी हो सकता है, स्प्राउट्स हो सकता है। ये सब कच्चा आहार या रॉ फूड है जो आपके शरीर को प्रकृति के द्वारा दिए गए बिल्कुल ताज़े और जो भी न्यूट्रिशन है पूरे आपको न्यूट्रिशन उस समय आपके शरीर को मिलता है उससे, बिना प्रोसेस हुए बीच में। दूसरा जो सिद्धांत है पानी के विषय में, अभी हम
पानी की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में पानी मेन ट्रांसपोर्टर का काम करता है। हमारे शरीर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खून के द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचते हैं, तभी वो सही तरीके से क्रियान्वित हो पाते हैं। और हमारे ब्लड में करीब 95% तक वाटर होता है। तो इस पानी को टाइमली रिप्लेसमेंट भी चाहिए। वो टाइमली रिप्लेसमेंट कैसे होता है? जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। हम देखें मोस्टली हम अपने सामान्य जीवन में क्या करते हैं कि हमने मान लीजिए 12 बजे भोजन किया और 2:30-3 बजे के आसपास ऑफिस क्लास में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो जो समय आपका पानी पीने का होता है उस समय आप चाय या कॉफ़ी से अपनी उस प्यास को समाप्त कर देते हैं। तो अगर हम मेज़र करें दिन भर में हमने कितना पानी पिया, तो आप देखेंगे कि 1.5 लीटर में या 1 लीटर में ही आपका पूरा दिन कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये शरीर में एक माइक्रो डिहाइड्रेशन क्रिएट करता है। तो ये जो माइक्रो डिहाइड्रेशन होता है इससे काफ़ी सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। स्किन का कॉम्प्लेक्शन बिगड़ता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है और लॉन्ग रन में आपको स्किन की कोई समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होना, ये सब भी हो सकते हैं। तो कई सारी बीमारियां ऐसी हैं, कई सारी समस्याएं ऐसी हैं। अगर हम पानी को ही पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से पिएं तो हम उन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कि आपका हाइपर एसिडिटी है। इसलिए अब पानी की जो क्वालिटी है, जो पानी हमें मिलता है, उसकी भी क्वालिटी में थोड़ा हम देखें कि हम कैसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी को करीब करीब 12 घंटे तक भर के रखेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि हमें शुद्ध पानी के लिए हम आरओ पर आधारित हैं। आरओ से जब ट्रीटेड पानी हमें मिलता है तो उसका टीडीएस वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। ऐसे पानी को अगर हम करीब 12 घंटे मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो उसकी टीडीएस वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। उसके साथ साथ हम पानी में मिंट की पत्तियाँ या ककड़ी के कुछ टुकड़े डालकर भी उसकी क्वालिटी में थोड़े चेंजेस ला सकते हैं, उसको थोड़ा एल्कलाइन बना सकते हैं। तो इस प्रकार का पानी अगर हम 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर भी मौसम के अनुसार और हमारा जिस प्रकार का व्यवसाय है उसके आधार पर भी पानी की क्वांटिटीज़ में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे मजदूर भाई बहन जो मेहनत करते हैं, उनको 3 से 4 लीटर तक पानी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए। तीसरी बात कही कि आपको दिन में 1 घंटे व्यायाम करना ही करना है। व्यायाम क्यों ज़रूरी है? जब आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी टिश्यूज़ में, सेल्स में ब्लड की सप्लाई अच्छे से जाती है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी बहुत अच्छे से जाती है। तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी होती है। अब एक्सरसाइज की क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक्सरसाइज किस प्रकार की हो हमारी, तो हम ध्यान रखें कि हमारे व्यायाम में सबसे पहला कंपोनेंट तो है सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज, लूजनिंग एक्सरसाइज। आपके शरीर के जितने भी जॉइंट हैं उनके जो भी पॉसिबल मूवमेंट हैं, आपके हाथ का ये पॉसिबल मूवमेंट है, ये पॉसिबल मूवमेंट है, आपके जितने भी जॉइंट हैं बॉडी के उनके जो भी पॉसिबल मूवमेंट है, आपके एल्बो का ये मूवमेंट है, आपके शोल्डर का ये पूरा मूवमेंट है, तो आपके सारे जॉइंट्स का पॉसिबल मूवमेंट आपको करना है। ये एक पहला कंपोनेंट हुआ। दूसरा कंपोनेंट हुआ स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में कई सारे आसन हैं जिसे हम बता सकते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, धनुरासन। तो और आप मॉडर्न कुछ स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स हैं, स्ट्रेचिंग को भी उसमें शामिल करना है। स्ट्रेचिंग से आपकी जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव होता है। उनमें खिंचाव होता है तो उनके अंदर जो लैक्टिक एसिड और कंपाउंड जो इकट्ठे हो गए हैं, जो स्टैग्नेटेड ब्लड है, वो जब आपकी वेन्स और आर्टरीज आपकी मसल्स के बीच में कंप्रेस होती हैं तो उनसे निकल के वो मेन स्ट्रीम में पहुंचता है। और जब वो रिलैक्स होती हैं मसल, जब आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो फिर तेज़ी से नया फ्रेश ब्लड उनके अंदर पहुंचता है। इसलिए इससे आपकी मस्कुलर हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो 2 कंपोनेंट हो गए, लूजनिंग, जॉइंट मूवमेंट एंड स्ट्रेचिंग। तीसरा कंपोनेंट इसमें है स्ट्रेंथनिंग। तो मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। इसके लिए
जिम में तो वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं, अदरवाइज योग में कई सारे ऐसे आसन और क्रियाएं हैं जिसमें आप अपने शरीर के भार का उपयोग करके ही स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं अपने मसल्स की। अगला कंपोनेंट है ब्रीदिंग। तो एक्सरसाइज करते समय हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे लंग्स का अच्छे से उपयोग हो रहा हो, लंग्स की पूरी कैपेसिटी का उपयोग हो रहा हो। उसके लिए आप पर्टिकुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पूरा सेक्शन है, एक हैंड रेजिंग ब्रीदिंग है, लेग रेजिंग ब्रीदिंग है और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग्स हैं। तो वो सब ब्रीदिंग के कंपोनेंट को कम से कम 10 मिनट पूरा आप ब्रीदिंग के कंपोनेंट को दीजिए। योग में हम इसे प्राणायाम के द्वारा करते हैं। चौथा कंपोनेंट है एक्सरसाइज में रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन को भी मैं एक्सरसाइज का एक कंपोनेंट मानता हूँ। मूल रूप से लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करना है, आधा घंटे 1 घंटे तो खूब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आके स्नान करके अपने ऑफिस में या काम के लिए निकल जाएंगे, दिन भर की प्रवृत्ति के लिए चले जाएंगे। लेकिन हम लोग एडवाइस करते हैं आप जब एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद 5 से 10 मिनट का शवासन या रिलैक्सेशन करें, उसके बाद आप अपनी दूसरी प्रवृत्तियों में जाएं। अब इसमें हमारे लिए कौन कौन सी अच्छे एक्सरसाइज हो सकते हैं? तो सबसे आइडियल एक्सरसाइज है योगाभ्यास करना, योगासन, प्राणायाम, योग की शुद्धि क्रियाएं, इनका अभ्यास करेंगे तो सबसे अच्छा है। दूसरा, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तीसरा, स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर कुछ लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, किसी को बैडमिंटन खेलना है, किसी को वॉलीबॉल खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है, ये भी बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन जो जॉइंट मूवमेंट का कंपोनेंट जो योग में दिया गया है, इसको करना बहुत आवश्यक है। इसे शिथिलीकरण व्यायाम बोलते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स में जाते हो, लेकिन आपको ये लूजनिंग एक्सरसाइज का कंपोनेंट करना ही चाहिए, तभी आप उस स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज के कंपोनेंट हैं। इसके बाद उन्होंने चौथी बात बताई कि आपको सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास, फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग के कई प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से फास्टिंग को बोलते हैं किसी भी प्रकार का भोजन न लिया जाए सिवाय पानी के। पानी के बिना के उपवास को हम थेरेप्यूटिक फास्टिंग नहीं मानते। एक चिकित्सा होती है कि आप अपना जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने के लिए उपवास करें, जिसको हम बोलते हैं कि सप्ताह में 1 दिन आप उपवास करें। वो 1 दिन उपवास मतलब कि 24 आवर्स की फास्टिंग। रेगुलर में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, बट सप्ताह में 1 दिन 24 आवर्स की फास्टिंग करें। प्रकृति में अगर देखा जाए तो सभी जीव किसी न किसी रूप में फास्टिंग करते हैं। वो स्वतः ही फास्टिंग उनकी हो जाती है। कारण है कि प्रकृति में जो भोजन की उपलब्धता है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती। तो जो अन्य जीव जंतु भी हैं, उनका भोजन किसी ऋतु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है और किसी ऋतु में कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो जब भोजन कम मात्रा में उपलब्ध रहता है तो उनका उपवास हो जाता है। तो उस दौरान उनका शरीर, उनके शरीर के अंदर जो स्टोर हुआ फूड है उस पर सर्वाइव करता है। तो फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में जो फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में जो फूड स्टोर्ड है, उसका उपयोग करके हम ऊर्जा से अपने दिन को चलाते हैं, ताकि जो शरीर में स्टोर हो गया है फूड वो भी यूटिलाइज हो जाए। इस फास्टिंग के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। फास्टिंग अपने आप में एक विश्राम की प्रक्रिया है। ये फिजियोलॉजिकल रेस्ट आपको देती है। फिजिकल रेस्ट, आप कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, ये फिजिकल रेस्ट होता है। मेंटल रेस्ट, आपका मन शांत है, ज़्यादा विचार नहीं चल रही है, मेंटल रेस्ट है। फिजियोलॉजिकल रेस्ट, जब आपके शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं बहुत ईज पर हैं, बहुत आराम से चल रही हैं, उनके ऊपर कोई ओवरलोड नहीं है। आपका लीवर अच्छे से आसानी से काम कर रहा है, आपकी इंटेस्टाइन पर ओवरलोड नहीं है, आपकी किडनी पर ओवरलोड नहीं है, आपकी हार्ट पर ओवरलोड नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट नेचुरोपैथी में है, इसको समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मशीन, हम उसको विश्राम देते हैं। हम अपने शरीर को ही विश्राम देते हैं। शनिवार या रविवार हम छुट्टी लेते हैं, आराम करते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर की जो मशीनरी चल रही है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा है, इसे हम रेस्ट नहीं देते। बल्कि होता है इसका उल्टा है
कि जब इसको रेस्ट देने की आवश्यकता होती है उसकी जगह उस छुट्टी के दिन हम क्या करते हैं, बाहर जाके भोजन करते हैं और ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसको पचाने में हमारे शरीर को बहुत तकलीफ होती है। तो जब लगातार ऐसी प्रक्रिया चलती है कि हम ऐसा भोजन करते हैं जिसको पचाने में शरीर को ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा मेहनत होती है, या उसमें फूड एडिटिव्स, एलर्जेंस होते हैं, तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं अगर हम इसी तरीके की जीवनचर्या साल 2 साल 3 साल तक जीते हैं। तो फास्टिंग की उपयोगिता को समझते हुए हमारे जितने ऋषि मुनि थे सब ने, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो या और अन्य धर्मों की बात हो, सब में इस फास्टिंग को किसी न किसी रूप में अपनाया गया है। तो फास्टिंग को सभी विद्वान लोगों ने महत्व दिया है, उसे माना है और उसको अपनाया है। तो ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रोसेस नहीं है, आपके शरीर को ठीक करने की प्रोसेस है। इसको जब हमें धर्म में डाला है तो अभी जो वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को स्वीकारते हैं कि फास्टिंग के साथ साथ माइंडफुलनेस की आवश्यकता है। तो जब हम देखते हैं कि उपवास को, जब हम किसी व्रत उपवास करते हैं धार्मिक तरीके से, तो उसका एक उद्यापन होता है, शाम को भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, एक माइंडफुलनेस की प्रक्रिया है जहाँ हम सामाजिक रूप से लोगों के साथ जुड़ते हैं और आनंद अनुभव करते हैं। तो जो हम थेरेपेटिक फास्टिंग करें उसमें भी हमारा जो माहौल है, जो एटमॉस्फियर है, वो कैसा होना चाहिए, माइंडफुलनेस के साथ होना चाहिए, दुखी के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं कि अरे आज तो पूरा दिन कुछ भोजन खाने को नहीं मिला। तो इसलिए ये फास्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए एक दिन का उपवास करें, और आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर लंबे उपवास भी कर सकते हैं। 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का उपवास भी किया जा सकता है और उसके अलग अलग प्रकार हैं करने के, उसकी एक पूरी पद्धति है। तो आपकी जैसा स्वास्थ्य है, जैसी तकलीफ है, उसके अनुसार कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा के देख रेख में या किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आप इस उपवास को कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार वी वेंकट राव जी ने बताया कि हमें दिन में 2 बार प्रार्थना करनी चाहिए, सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना। तो प्रार्थना क्यों जरूरी है? महात्मा गांधी जी ने भी प्रार्थना पर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने रेकमेंड किया कि प्रार्थना करना है। उनका एक कोट है कि ऐसा कभी मेरे जीवन में नहीं हुआ कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया हो। तो महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं कि वो जो प्रार्थना ईश्वर से करते हैं उसका उन्हें उत्तर मिलता है। तो प्रार्थना बहुत उपयोगी है। हम प्राकृतिक चिकित्सा में जिस प्रार्थना की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जब आप दिन भर का काम करके आते हैं, बहुत सारा तनाव लेकर आते हैं, तो ये आपको हल्का करने की प्रक्रिया है। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप यात्रा में गए हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपके साथ कुछ सामान है, कुछ बैगेज है, वो बैगेज आप लेकर चढ़ रहे हैं ट्रेन में। चढ़ने के बाद, ट्रेन में बैठने के बाद, क्या आप उस सामान को उठा के अपने सिर पर रखते हैं? नहीं रखते। हम बाजू में रख देते हैं, जो उसको रखने की जगह उसमें रखते, सिर पे नहीं रखते। लेकिन हम अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं कि जब हम अपना काम कर रहे होते हैं, वर्क का स्ट्रेस होता है, घर पे आके भी हम वो वर्क का स्ट्रेस अपने सिर पे लेके बैठे रहते हैं, जबकि वो समय सोने का है, आराम करने का है, घर के लोगों का है, लेकिन उस समय में भी हम वो तनाव अपने सिर पर लिए रहते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्रार्थना करने का भाव है वो ये है कि शाम को जब घर पे आ जाएं तो भगवान के सामने प्रार्थना करके आपके पूरे अहंकार को, आपका दिन भर की जो भी क्रियाएं हुई, जो भी आपको मिला, जो भी खोया, वो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। तो आप परिवार के साथ एंजॉय कर पाएंगे, माइंडफुलनेस की स्टेज पे रह पाएंगे और आपको अच्छी नींद आ सकेगी। और वो अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। तो हमारे शरीर में भी एक एंटीऑक्सीडेंट बनता है जो आपके दिन भर के जो एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट है उसका करीब 40% बनाता है, मेलाटोनिन। ये कब बॉडी में सिक्रीट होता है, कब एक्टिव होता है? जब आप गहरी निद्रा में होते हैं या ध्यान में होते हैं। तो अगर आपकी निद्रा अच्छे से नहीं होती है तो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिशिएंसी रह जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट कम होंगे, मेलाटोनिन कम होगा, तो वृद्धावस्था जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो एजिंग प्रोसेस को अगर कंट्रोल में रखना है तो आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद अच्छी हो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर से कुछ मांगना नहीं,
प्रार्थना का अर्थ है हमारे पास जो कुछ भी है उसको ईश्वर को कुछ क्षणों के लिए समर्पित कर देना। सारे विचारों को, सारे तनावों को, जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब ईश्वर के चरणों में रख देने का। और सुबह वापस आपको बैग उठा के ऑफिस जाना है, सुबह वापस आप वो तनाव ले लो, लेकिन रात में कम से कम सोते समय माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो, ईश्वर के चरणों में सारी आपके तनावों को छोड़कर विश्राम करें। तो इस प्रकार के ये 5 नियम डॉक्टर वी वेंकट राव ने बताए हैं। अगर हम इनका पालन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और बड़े बड़े जो स्वास्थ्य के जो नियम है सर, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर रखे हैं। દર્શકોને વિનંતી કે જો આપને પણ પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાના સંદર્ભમાં આ તકે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે આપ પૂછી શકો છો। આયોજકોને વિનંતી કરીશ કે આપણો જે ટોલ ફ્રી નંબર છે એ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ કરવામાં આવે। सर ये जो 5 बातें आपने अभी बताई, जैसे कि खाने के बीच 5 से 6 घंटे का मिनिमम जो है अवकाश रखना है, मिनिमम 2 से 3 लीटर तक पानी पीना है, ये सब जो चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि हाई प्रोटीन वाला होना चाहिए। कई लोग स्प्राउट्स लेने को बोल रहे हैं। आयुर्वेद जो कि इसको विपरीत मानता है कि स्प्राउट्स पचने में सर्वाधिक जो है कठिन होते हैं, भारी होते हैं, तो वो थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं ले सकता। तो प्राकृतिक चिकित्सा का क्या अपना ओपिनियन है ब्रेकफास्ट के बारे में? उसके हिसाब से आइडियल ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? हमें इसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अलग अलग हो सकता है, उसकी एक्टिविटी पर आधारित हो सकता है, उसकी उम्र पर आधारित हो सकता है। तो यहाँ जो ज़्यादा मात्रा में ब्रेकफास्ट लेने की बात की गई है वो मात्रा की बात नहीं है, ये गुणात्मकता की बात है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि सुबह आप फ्रेश होने के बाद आपका पेट पूरी तरीके से खाली है, इस समय आप जो भी भोजन ले रहे हैं उसका पाचन सबसे अच्छा होने वाला है। इसलिए आपको इस प्रकार का भोजन लेना है कि जो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा जैसे रॉ फूड की बात करती है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा बोलती है कि आप स्प्राउट्स का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि स्प्राउट्स पृथ्वी पर नॉन सबसे या हाईली न्यूट्रिशियस फूड में से एक है। क्योंकि इसमें जब हम किसी बीज को अंकुरित कराते हैं तो बीज में एक प्रोसेस शुरू हो जाती है पानी के साथ मिलके, उसमें कुछ एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं और उसके अंदर जो प्रोटीन्स और उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाते बदल जाते हैं, ताकि पौधा उनको उपयोग करके दूसरा पूरा पौधा बन सके। तो पौधे अपने लिए उस भोजन को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये अंकुरित पचने में बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारी हैबिट नहीं है तो ऐसा लग सकता है। तो अगर अंकुरित को अच्छे से चबा चबा के आप खाएंगे तो ये पचने में भी बहुत सहायक है। और अगर पचने में कुछ तकलीफ़ होती है तो इसको थोड़ा स्टीम करके आप ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप अंकुरित ले सकते हैं, इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आप सैलेड काट के डाल सकते हैं, जैसे कि काकड़ी है और टमाटर है, धनिया पत्ती है, पुदीना है, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं। और आप फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं सुबह सुबह, जिसमें 500 से 600 ग्राम फ्रूट लें। तो हमने जो 2 बार भोजन बताया है उसके आगे पीछे का जो समय है उसमें आप फलाहार या रसाहार इस प्रकार का भोजन कर सकते हैं। तो जो 2 मील के बीच में जो अंतर बताया है उसके पीछे कारण ये है कि एक भोजन पच जाए तब दूसरा भोजन लें। तो जब आप भोजन में आपने फल लिया है, अगर आपने फल खाया है तो फल को पचने में कितना समय लगता है? 2.5 से 3 घंटा। तो आप दूसरा मील अगर फ्रूट के बाद लेना चाहें तो 2.5 से 3 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आपने कोई जूस लिया है तो उसे पचने में आधा घंटे से 1 घंटे का समय लगता है, तो आधा से 1 घंटे बाद दूसरे मील के लिए जा सकते हैं। तो आपके शरीर को सुविधा होगी उसको पचाने में। और आपने पूरा खाना खाया है, दाल रोटी सब्जी चावल छाछ सब कुछ, तो उसको 7-8 घंटा पचने में लगता है। इसलिए अगर जब आप पूरा फुल मील लेते हैं तो उसके 7 से 8 घंटे के बाद ही दूसरा भोजन करें। अब अलग अलग अगर हमें बीमारियां हैं, तकलीफ, उसके हिसाब से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बदल जाता है। आजकल डायबिटीज़ की समस्या काफ़ी है, तो डायबिटिक लोग सुबह सुबह अगर 2-3 नीम की पत्ती, 2-4 तुलसी की पत्ती या आपका 1-2 पत्तियां बिल्व का
ये अपने ब्रेकफास्ट के साथ ऐड करते हैं, स्प्राउट्स के साथ ऐड करते हैं, तो उनको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो हमने अंकुरित फूड की बात की, तो उसमें मूंग को अंकुरित कर सकते हैं आप, मग बोलते हैं गुजराती में, आप चना को अंकुरित कर सकते हैं, आप मेथी दाने को अंकुरित कर सकते हैं। ऐसे कई सारे दालें हैं जो दाल के रूप में लिए जाते हैं, उनको आप अंकुरित करके ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, जिसे बॉडी आसानी से पचा सके, क्योंकि उसमें उसके एंजाइम्स जो उसके लिए पचाने के लिए ज़रूरी हैं वो उसमें ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं नेचुरली। તો દર્શક મિત્રો, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાનું માનવું છે કે કોઈ પણ એક પ્રકારનો ખોરાક બ્રેકફાસ્ટ સ્વરૂપે બધા વ્યક્તિઓ માટે લાભકારી નથી. ઉંમર પ્રમાણે, આપણા બોડીના કન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે, આપણા શરીરની જરૂરિયાત પ્રમાણે અને સૌથી વિશેષ રોગ અનુસાર એની અંદર આપણે ચોક્કસથી ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. सर, अभी आपने मूंग दाल और सब दालों की बात की है, तो अभी एक ये भी मिथ सोसाइटी में है, ज़्यादातर यंगस्टर्स जो है वो जो प्रोटीन पाउडर है वो लेते हैं, जिम में जाते हैं, और ख़ास करके उनको मस्कुलर हाइपरट्रोफी जल्दी से जल्दी बनानी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर मिल्क के साथ लेते हैं. तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ये पहले तो निषेध है या ये कर सकते हैं, और इसका जिसको हम गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं वो क्या होता है? जो मसल बिल्डअप ज़बरदस्ती कराने की बात है, इस पर प्राकृतिक चिकित्सा अनुमति नहीं देती कि आप ज़बरदस्ती बॉडी बिल्डिंग करें, आप ज़बरदस्ती ऊपर से हार्मोन्स लेकर अपने शरीर को प्रताड़ित करें ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्डअप करने के लिए. अच्छे प्रोटीन सोर्स के रूप में आप मूंग और चने को अंकुरित करके ले सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है. आप इसको स्टीम करके या बॉईल करके भी ले सकते हैं. मिल्क भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है. आप सोया प्रोटीन ले सकते हैं, और इसके साथ जो आपको फ़ैट का सोर्स चाहिए उसमें कोकोनट बहुत अच्छा मदद करेगा आपको बॉडी बिल्डिंग में. कोकोनट मिल्क ले सकते हैं. फिर इसके साथ आप आलमंड्स और कैजू नट्स, ये नट्स का उपयोग भी कर सकते हैं. खजूर भी बहुत अच्छा, आपको जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपको जो कैलोरी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें खजूर भी बहुत अच्छा काम करेगा. एक बहुत अच्छी रेसिपी होती है कोकोनट मिल्क. तो कोकोनट मिल्क में आप कोकोनट को क्रश करके उस कोकोनट का पानी है वो भी उसमें रखिए, मलाई को भी उसमें रखिए, क्रश कीजिए, और उसके साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, अंजीर, ये मिक्स करके आप बहुत अच्छा एक कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, और हाईली न्यूट्रिशियस ये होता है. तो इसका उपयोग बॉडी बिल्डिंग वाले लोग भी कर सकते हैं. તો ખાસ કરીને પ્રોટીનનો સોર્સ જે છે, પ્રાકૃતિક રીતે પણ ઘણા બધા પ્રોટીન સોર્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે, અને ક્વોલિટી પ્રોટીન્સ જેને આપણે કહીએ કે ઇઝીલી ડાયજેસ્ટેબલ ફોર્મ ઓફ પ્રોટીન્સ જે છે એ પ્રાકૃતિક રીતે અવેલેબલ છે. ચોક્કસથી આપણે એનું સેવન કરી શકીએ. સિવાય કે બજારમાં જે મળેલા છે મોટા મોટા ડબ્બાઓની અંદર જે પ્રોટીન પાવડર્સ મળે છે એ સદા સેવનીય છે કે આપણે એ જે બજારની પ્રોટીન્સ છે એના જગ્યાએ આ નેચરલ પ્રોટીન્સનો યુઝ કરીએ. सर, ये भी बात देखी गई है कि जैसे आपने अभी बोला कि पानी 2 से 3 लीटर पीना है, और जहाँ तक हाइड्रोथेरापी की बात करें तो स्पाइनल बाथ, कटी बाथ, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के भी उपक्रम है. तो पानी की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद दोनों प्रकार के पानी का यूज़ करता है. उष्णोदक जो कि 66% डिसीज़ में एडवोकेट करता है आयुर्वेद, और जो पित्त वाली कंडीशन है उसमें शीत या तो माइल्ड शीत उदक की बात कही है उन्होंने. तो प्राकृतिक चिकित्सा ये जो पीने वाला पानी और हाइड्रोथेरापी में जो यूज़ करते हैं वो पानी के संदर्भ में क्या विचार रखता है? प्राकृतिक चिकित्सा का एक पूरा अंग है हाइड्रोथेरेपी. तो हाइड्रोथेरेपी में जल चिकित्सा इसे बोलते हैं. इसमें 2 प्रकार से पानी का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़. तो इंटरनल यूज़ में हम वाटर ड्रिंकिंग और पानी का एनीमा इस फॉर्म में लेते हैं. एक्सटर्नल यूज़ में जैसे कटी स्नान है, फुल टब बाथ है, पूरा टब का स्नान है, स्पाइनल बाथ है, आपकी करोड़रज्जु पे स्नान है, और कई सारे जेट स्प्रे वगैरह हैं. और थर्मल पैक का भी हम उपयोग करते हैं. थर्मल पैक बहुत सिंपल सी पद्धति है. एक कॉटन का कपड़ा होता है, पानी में भिगोया, निचोड़ा, उसको रैप कर दिया, और उसके ऊपर से एक वूलन क्लॉथ रैप कर दिया. ये
जिस भी एरिया में आपके शरीर में कोई स्वेलिंग है, जैसे अर्थराइटिस का पेन वगैरह है, या आपका सेंट्रल फैट ज़्यादा है तो पेट पर, या अस्थमा ब्रोंकाइटिस की तकलीफ़ है तो छाती पर, ये लपेट करना घर पे भी कर सकते हैं आसानी से अगर आप उस प्रक्रिया को समझ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सटर्नल उपयोग पानी के हैं। और जो पानी का इंटरनल यूज़ है उसमें आपने जैसा बताया कि ठंडे पानी का उपयोग करना, गर्म पानी का उपयोग करना, तो हम जनरली एडवाइस करते हैं रूम टेम्परेचर का पानी हमारे शरीर के लिए नॉर्मली सबसे अच्छा होता है। लेकिन हाँ, जिसको गले में कफ रहता है, कफ दोषों की समस्या है, तो थोड़ा गुनगुना पानी अगर वो लेते हैं तो उससे उनके कफ दोष अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो वो उन्हें पानी को ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मिट्टी के मटके में आप भर के रखते हैं वो पानी आप लेते हैं सुबह में, वो भी ठंडे पानी का काम करता है। लेकिन फ्रीजिंग करना पानी को, रेफ्रिजरेटिंग करना, ये पानी की जो गुणवत्ता है उसको पूरी तरह से बिगाड़ देता है। तो और हम देखते हैं हम अपने पीने वाले पानी को किस तरीके से पॉल्यूट करते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स में भर के पानी को रखते हैं। तो अगर आपने प्लास्टिक की बोतल्स में, वो कोई भी अलग अलग कैटेगरी प्लास्टिक की आती हैं, लेकिन सभी प्रकार की प्लास्टिक कुछ ना कुछ मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक पानी में छोड़ते ही हैं। तो आपने अगर प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा है तो वो सनलाइट के संपर्क में ना आए, गर्म पानी ना हो, गर्मी के संपर्क में ना आए, क्योंकि गर्मी के संपर्क में आने में माइक्रो प्लास्टिक्स और ज़्यादा मात्रा में पानी में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि पानी को, हम अपना जो पानी पी रहे हैं उसको कैसे हमें अच्छा बनाए रखना है। तो प्लास्टिक की बोतल का उपयोग ना करें, मेटल की बोतल का उपयोग करें या मिट्टी की बोतल का उपयोग करें। तो इस तरीके से आप पानी को मैनेज कर सकते हैं। દર્શક મિત્રો, તો આપણે જાણ્યું કે બંને રીતે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા જે છે એ પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. ઇન્ટરનલ પાણી જે લેવાની વાત છે એની પણ એક માત્રા અને ક્વોલિટીની વાત સાહેબે કરી. સાથે સાથે હાઇડ્રોથેરાપીની અંદર આપણે કઈ રીતે જલ ચિकित्साમાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની પણ વાત કરી. सर, ये एक बात ये भी देखी गई है, जैसा कि आपने फास्टिंग बोला, खास करके बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर फास्टिंग किया तो फिर ज़्यादा करने से वीकनेस आ जाएगी, फिर जो रोग है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा और जो है वो आगे जाके और तकलीफ़ें बढ़ सकती है. तो ये एक मिथ समाज में है. प्राकृतिक चिकित्सा इस बात को कैसे देखता है? हमारा शरीर बहुत ज़्यादा हमारी अपनी धारणाओं से संचालित होता है। हम उसे जैसा समझा देते हैं शरीर उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमने अगर मान लिया है कि फास्टिंग करेंगे तो हमें वीकनेस आएगी, चक्कर आएगा, कुछ और काम नहीं कर पाएंगे, तो फास्टिंग करना शुरू किया, 4-5-6 घंटे में ही आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो मिथ है उसको धीरे धीरे हमें तोड़ने की आवश्यकता है। आप पहले 16 आवर्स की फास्टिंग शुरू कीजिए, फिर उसको कभी कभी आप 20 आवर्स पर लेकर जाइए, 23 आवर्स पर लेकर जाइए, मतलब दिन में सिर्फ एक भोजन कीजिए। जब वो आपसे अच्छे से हो जाए तो आप पूरा दिन उपवास कर सकते हैं। और शुरुआत में हो सके तो किसी प्राकृतिक चिकित्सक की देख रेख में उपवास करें। लेकिन यदि आपको कोई शारीरिक बीमारी है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप ध्यान रखें आप अपने आप से कोई उपवास में ना जाएं। या और भी कोई ऐसी परेशानियां हैं, कोई कैंसर के रोगी हैं हमारे भाई, तो उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उनको भी ध्यान रखना है, वो लोग भी फास्टिंग ना करें। छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेंस और बुजुर्ग लोग, मतलब अबव 65, इन लोगों को जनरली फास्टिंग हम रिकमेंड नहीं करते हैं, या उसे मॉडिफाइड तरीके से उनको फलाहार देके या रसाहार देके रखते हैं। हम उन्हें ईजिली डाइजेस्टेबल फूड देकर और थोड़ा नेगेटिव कैलोरी पर ले जाकर उपवास के फ़ायदे दिलाते हैं, रेदर देन पूरा फास्टिंग करने के। बहुत सही बताया सर आपने कि फास्टिंग के भी बहुत सारे, जैसे आपने बताया फलाहार, रसाहार, पूरा जो अनाज है उसका त्याग करना। लेकिन एक बात बहुत सही बोली सर ने कि अभ्यासात सिद्धिम प्राप्नोति, कोई भी चीज़ है वो अचानक से ही शुरू करनी या तो बंद करनी है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके अपने बॉडी को उसके साथ एक्वेंटेड करना है। बॉडी जब उससे अभ्यास पूर्ण हो जाए उसके बाद उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएंगे तो डेफिनेटली जो उसका बेनिफिट है वो बॉडी को मिलना शुरू हो जाएगा। सर, एक जो पंचतंत्र की बात आपने बताई, 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था व्यायाम का। तो अगर कोई एडल्ट कोई व्यायाम का पूरा एक डिज़ाइन कर रहा है कि एक आइडियल व्यायाम कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने व्यायाम के कंपोनेंट में डिटेल में बताया कि व्यायाम को डिज़ाइन करते समय ये देख लें कि आपका फिज़िकल स्टेटस क्या है। आपको आर्थराइटिस की परेशानी है, आपको डायबिटीज़ है,
आपको कमर या गर्दन की कोई तकलीफ़ है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, श्वास की तकलीफ है, उसके हिसाब से आप अपनी जो है एक्सरसाइज को डिज़ाइन करें। लेकिन जो लूजनिंग का कॉन्सेप्ट है, सभी के शरीर के सारे जॉइंट्स का मूवमेंट है, ये कॉन्सेप्ट लगभग सभी तरह के लोग कर सकते हैं। तो वो आप कर लीजिए पहले। फिर आपको जिन जॉइंट्स की समस्या है, किसी को आर्थराइटिस की समस्या है, तो आपके नीज़ पर फोकस करते हुए जो नीज़ को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइज है उनको अच्छे से करें। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके घुटनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वैसे व्यायाम ना करें। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करके अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को बना सकते हैं। और साथ साथ एक योग के चिकित्सक को भी साथ में जोड़कर आप प्लान बनाइएगा, ताकि आप एक्सरसाइज के साथ साथ योग को भी उसमें इंक्लूड कर सकें। तो आपका बहुत अच्छा एक्सरसाइज का प्लान तैयार हो जाएगा। तो आप उसमें शीतलीकरण व्यायाम, लूजनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ब्रीदिंग, ये सारे कंपोनेंट्स, कार्डियो, ये सारे कंपोनेंट्स अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल में डालिए। लेकिन एक बार मेरी ये राय है, किसी चिकित्सक से एक बार डिस्कस कर लीजिए कि ये हमारा एक्सरसाइज का प्रोग्राम है वो कैसे होना चाहिए। मूलतः हम देखते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति होता है, डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बीमारी का तो पूरा चार्ट बनाता है, लेकिन हम स्वस्थ व्यक्ति कभी कंसल्ट नहीं करते डॉक्टर से कि हमारा खाने पीने का सिस्टम रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारा एक्सरसाइज का रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर हम पहले से ही अपना एक्सरसाइज का सिस्टम, कि हमें कैसी एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, कौन सा हमारा शरीर का सिस्टम वीक है, कौन सा ज़्यादा ससेप्टेबल है बीमारी ग्रहण करने के, अगर हम वो पहले से प्लान करें, अपना एक्सरसाइज का प्लान, डाइट का प्लान फोकस्ड बनाएं बीमारी आने से पहले ही, तो हम आने वाली कई सारी बीमारियों को पहले ही रोक सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप स्वस्थ हैं, आपको थोड़ी बहुत कोई समस्या है, तो पहले से ही आप प्लान बनाइए, पहले से ही डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप काउंसलिंग करिए और बढ़िया सा डाइट का और एक्सरसाइज का प्लान बनाइए और फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए। દર્શક મિત્રો, આજની જે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ છે, લાઈફસ્ટાઈલ એટલી ફાસ્ટ થઈ ગઈ છે અને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પણ આજના વર્તમાન સમયમાં એટલી મોંઘી થઈ ગઈ છે કે આપણે સમજી શકીએ કે અમુક લોકોને તો માંદગી અથવા તો રોગ જે છે પરવડે એમ જ નથી. અને માટે જ સાહેબે કહ્યું એ આપણા માટે ખૂબ જ સુંદર વાત છે, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. દર્શક મિત્રો, હું તો એવું કહીશ કે સમય આવી ગયો છે કે સ્વસ્થ વ્યક્તિઓ વધારે સજાગ રહીને પોતાના સ્વાસ્થ્યના અનુવર્તન માટે જે છે એ ચોક્કસથી ઉપક્રમો સ્ટાર્ટ કરે. સાહેબે આજે જે 5 વસ્તુઓ આપને કહેલી છે એની સાથે સાથે દિનચર્યા, ઋતુચર્યા, સદવ્રત પાલનની વારંવાર આપણે ચર્ચાઓ કરતા હોઈએ છીએ. મને લાગે છે કે એકવાર તબેલામાંથી ઘોડાઓ છૂટી જાય પછી આપણા હાથમાં બહુ વધારે કશું રહેતું નથી. બેટર અને ડહાપણ તો એ જ કહેવાય કે તબેલાને પહેલેથી જ આપણે તાળું મારીને રાખીએ. કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે સ્વસ્થ વ્યક્તિએ સ્વસ્થ રહેવા માટેના પ્રયત્નો કરવા એ પણ સમયની માંગ છે, આજની જીવનશૈલીની માંગ છે અને એના માટે આપણે ચોક્કસથી પ્રયત્ન કરવા પડે. આ પ્રયત્નોના ભાગરૂપે આજે જે સાહેબે આપને 5 વસ્તુઓ કહેલી છે ચોક્કસથી આપને ઉપયોગી निवड़ से. सर, धीरे धीरे कोविड के केसेस के बारे में भी एक प्रश्न आपको पूछूंगा कि धीरे धीरे कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं. पिछले 2 साल हमने देखा कि जैसे ही ठंडी के दिन आते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल का दिन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग केसेस बढ़ने लगते हैं. प्राकृतिक चिकित्सा कोविड-19 में किस तरह से उपयोगी हो सकती है? कोविड-19 पर सरकार के बहुत सारे सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं. इतना तेज़ी से वैक्सीनेशन भारतभर में हो रहा है जितना कि कई डेवलप्ड कंट्रीज़ भी नहीं कर पा रही हैं. और लेकिन साथ साथ हम कुछ सावधानियों का भी पालन करें, जैसा कि कोविड गाइडलाइंस में बताया ही जाता है. परंतु नेचुरोपैथी का अगर इनपुट हम उसमें माने तो आप घर पर क्या साधारण चीज़ें कर सकते हैं. आप अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन रखिए, अच्छा रखिए, तो आपको जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा. इसमें आप नेति, योग का एक अभ्यास है नेति, इसको नेजल इरिगेशन भी बोलते हैं. एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं. इसका अभ्यास अगर आप सप्ताह में 3 या 4 दिन कर सकें. फिर फेशियल स्टीम, चेहरे पर भाप लेना, ये भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं. स्पेशली जब आप बाहर से आते हो तब आप फेशियल स्टीम ले लीजिएगा. और गार्गलिंग करना, गुनगुने पानी में थोड़ा आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एंटीवायरल और एंटीबायोटिक दोनों ही गुण इसमें हैं. तो उससे आप घर पे जैसे ही बाहर से आते हैं तो थोड़ा पानी मुंह में लेके गुनगुना हल्दी वाला पानी, उससे गार्गलिंग करें, फेशियल स्टीम लें और सुबह सुबह नेति कर लें. और जो आपका फूड है उसमें रॉ फूड को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें. ये रॉ फूड आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा, ताकि कोई भी
बैक्टीरिया वायरसेस की ग्रोथ ईजिली आपकी बॉडी में नहीं हो सके, आपकी नेज़ल कैविटी में भी जो भी सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, वो भी अच्छे से एक्टिव रहें और वायरस को वहीं पर ट्रैप कर दें और आपको अंदर कोई बीमारी जा ही ना पाए आपके शरीर में। न केवल ये कोविड, इसके अलावा जो भी फ्लू के और भी वायरसेस हैं वो भी आपको ना सताएं अगर आप इस तरीके की जीवनचर्या का पालन करेंगे। ये 2-3 नियम अगर आप जीवन में डाल लेंगे अपने दिनचर्या में। તો કુલ મિલાવીને દર્શક મિત્રો કહેવાનું એ જ છે કે કોવિડ-19 અને અન્ય વાયરલ ઇન્ફેક્શન પણ જ્યારે શ્વસન તંત્રના માર્ગ થ્રુ આપણા શરીરમાં પ્રવેશ લેતા હોય તો શ્વસન તંત્રની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવી, એને વધારે ને વધારે સુદૃઢ બનાવવા માટે સાહેબે નીતિની વાત કરી, સાહેબે બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝની વાત કરી અને ઓવરઓલ ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટઅપ કરે એ પ્રકારના આહાર વિહાર અને નિંદ્રાની વાત કરી. તો આ કરવાથી ચોક્કસથી વ્યક્તિનું રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને આ પ્રકારના સિઝનલ ડિસીઝીસ, જેને આપણે ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ કહીએ છીએ, એની સામે સામનો કરવામાં શરીરને ઘણું બધું ઉપયોગી निवड़ी सके छे. सर, लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा क्योंकि आप अभी नेचुरोपैथी कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो अमूमन ज़्यादातर कौन कौन से रोग के पेशेंट्स नेचुरोपैथी में आते हैं और नेचुरोपैथी कौन कौन से उपक्रम उनको ऑफर करता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए. प्राकृतिक चिकित्सा में जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के रोगी हैं, मैं रोगी नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग उन्हें साधक बोलते हैं, क्योंकि साधना आप करते हैं, हम सिर्फ रास्ता बताते हैं कि आपको भोजन में ये परहेज करना है, जीवनचर्या में ये परहेज करना है, और उन चीज़ों को आप अपने जीवन में ढालते हैं, आप साधना करते हैं और आप स्वस्थ होते हैं. तो जीवनचर्या से जुड़े हुए जो तकलीफ़ें हैं, जो रोग हैं, जिनमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वेरिकोज वेन, ओबेसिटी, तो ऐसे रोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत उपयोगी रहती है. कौन कौन से सर उपक्रम जो है, जैसे कि आपने हाइड्रोथेरापी का तो बोल दिया, तो कौन कौन सी और भी उपक्रम है वहाँ पर आप ऑफर करते हैं? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटोथेरेपी और आहार के विषय में जो बताया, बाकी जो एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार होता है नेचुरोपैथी सेंटर्स में, जहाँ पर अपने आप हीलिंग प्रोसेस डेवलप होने लगती है. वो एक हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं होता. जब नेचुरोपैथी सेंटर्स मोस्टली प्रकृति के ज़्यादा करीब स्थान पर होते हैं, हरा भरा स्थान होता है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, और जो आपकी शरीर को सही से ट्यून अप कर सके, आपकी शरीर की एनर्जीज को, इस प्रकार की पूरी दिनचर्या रखी जाती है. जो भोजन है वो आपको आपके घर से नहीं लेकर आना है. यहाँ पर जो भी भोजन मिलेगा वो हम ही देंगे और नाप कर देंगे कि आपको कितनी मात्रा में और क्या भोजन चाहिए, जिसका प्रतिदिन चार्ट बनता है. और कौन कौन सी थेरेपीज़, हाइड्रोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, फिजियो है, या आपको कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, कब कब चाहिए, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल आपका बनाया जाता है. सुबह आपको 5:30 बजे से उठाकर और शाम को 7:30 बजे प्रार्थना पर समाप्त करते हैं. इस प्रकार का पूरा एक दिनचर्या आपको पालन करने को दी जाती है. और ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अपने आप ठीक होते चले जाते हैं. साथ साथ एक लर्निंग अंदर डेवलप होती है, इनसाइट डेवलप होती है कि हम इस तरीके से भी जीवन जी सकते हैं. દર્શકો, મને લાગે છે કે નેચરોપેથી સેન્ટરનો એક્સપિરિયન્સ કર્યા પછી જે કોન્ફિડન્સ બિલ્ડઅપ થાય છે, જે પ્રકારે જીવનશૈલીની અંદર અપગ્રેડેશન થાય છે, એ ખૂબ જ વધારે જરૂરી છે અને એનો જ મુખ્ય ફાયદો થતો હોય છે. સાહેબે વાત કરી એમ કે સવારે 5:30થી લઈ અને 7 વાગ્યા સુધીનું એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ દિનચર્યાનું પ્લાનિંગ આપવામાં આવે છે અને જેના દ્વારા લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝીસ, જીવનશૈલીને લગતા રોગોની અંદર प्राकृतिक चिकित्सा खूब ज फायदाकारक निवड़े छे. दर्शकों, प्राकृतिक चिकित्सा आम जोईए तो प्रकृतिनी द्वारा अने प्रकृतिनी नजीक रहीने थनारी आ चिकित्सा हालमां आ प्रकारना सेंटरो द्वारा खूब ज सारी रीते आपवामां आवी रही है. और कुल मिला के सर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हेल्थ का हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो वहाँ पर सेटिस्फाई होता है. ज़्यादातर हॉलिस्टिक वे में जो है हम हमारे हेल्थ को रीगेन करते हैं. जी, समग्रता के साथ जो एक कॉन्सेप्ट है कि बीमारी हुई है तो दवा लेनी ही पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट से हम बाहर निकलते हैं कि नहीं, दवा की आवश्यकता नहीं है. हम शरीर को एक मौका दें कि अपने आप को ठीक कर सके. तो शरीर में कौन कौन से हमारे दिनचर्या की चीज़ें हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को फंक्शन नहीं करने दे रही हैं अच्छे से, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, वो गलतियों को हम हटाएंगे तो शरीर का की तो जो प्रकृति है वो ठीक होने की है, वो अपने आप ठीक होना शुरू कर देता है. हमें बस उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है.
તો કુલ મિલાવીને દર્શકો આપણા વૈદિક શાસ્ત્રોની અંદર જે સ્વભાવ ઉપરમવાદ એક પ્રકારનું થિયોરમ આપેલું છે કે જ્યારે કોઈ પણ સ્વભાવને જો વિશેષ કરીને આપણે એને એવું કહીએ કે ડીચેનલાઇઝ ન કરવામાં આવે, એને પૂરતો સમય આપવામાં આવે તો વસ્તુઓ પોતાની જાતે જ સ્વતઃ ઠીક થતી હોય છે. આ જ પ્રકારનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાનો છે કે શરીરમાં રહેલા કચરાઓને શરીર જાતે જ બહાર ફેંકશે, પણ જ્યારે એને આપણે બજારના અને બહારના વધારાના કચરા જે છે આપણે શરીરને ન આપીએ અને માટે જ ફાસ્ટિંગ થઈ ગયું, હાઇડ્રોથેરાપી, મડ થેરાપી, આ પ્રકારની ચિકિત્સાનો ઉપયોગ કરી અને स्वस्थायु, दीर्घायु, सुखायु की प्राप्ति प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा थाय है. सर, आप अपना टाइम लेके यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए उपस्थित हुए और आपने प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में बहुत सारे विषयों को यहाँ पर विशद रूप से वर्णन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद.